Okay. So the first law of thermodynamics, also known as law of conservation of energy. Okay. And it states that energy can neither be created nor be destroyed. So you already know this law. So first law क्या कहता है कि ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये सिर्फ क्या हो रही है, इट कैन ओनली ट्रांसफर और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो जैसे हमने एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा है क्लासेस में, अपने जब अपनी 12th में देखा होगा कि मान लीजिए कोई बॉल है विच इज एट अ हाइट ऑफ h. तो एट दैट टाइम इस बॉल में कौन सी एनर्जी है सर? पोटेंशियल एनर्जी. सर पोटेंशियल एनर्जी. जब ये बॉल यहां से इस बॉटम पे आ जाएगी then its potential energy become zero. But at that time same energy किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. So it can neither be created nor be destroyed, it's only change its form. तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है और कभी भी एनर्जी कभी भी लॉस नहीं हो रही है. अगर कभी भी आपको लग रहा है कि एनर्जी कम हुई है तो वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. ओके. So this is known as the first law of thermodynamics and it is called the universal law. यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं आप इसको किसी भी प्रोसेस पे लगा सकते हैं. ठीक है, आप चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है चाहे नहीं है. ओके, you can apply the first law of thermodynamics. It is because it is the universal law. It can be applied anywhere in the universe. Okay. So now, this is the universal law and this is the general statement of the first law of thermodynamics. Energy can neither be created nor be destroyed. But when we talk about thermodynamics, what is the definition of first law of thermodynamics? Okay. So this first law of thermodynamics can be stated for closed system undergoing a cycle or process. So ये closed, जो we know we have three type of system. First one is open closed system, second one is open system, and third one is isolated system. Okay. So this first law of thermodynamics can be stated for closed system, for open system and isolated system. तो हम तीनों systems के लिए first law of thermodynamics का statement लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या टेक कर रहे हैं? closed system. तो in this lecture we are talking only about closed system. Okay, that is clear. इस वाले लेक्चर में सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ क्लोज सिस्टम की. First law of thermodynamics for closed system. Now, yes. So for the closed system, it can be defined for a cycle and a process. What is cycle? What is cyclic process? सर जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही हो. So the series of states, the series of processes such that the initial state and the final state are identical. Okay, so that is known as cyclic process. And you know the process. So changing of system state from one equilibrium state to another is called process. So we are going to define the first law of thermodynamics first for the cycle and then for the process. In which system? In which system? Closed system. That is clear. So we will talk only about closed system. Okay, that is clear. Okay, very good. For a closed system undergoing a cyclic process, the cyclic integral of work is proportional to cyclic integral of work. So when we are talking about closed system which is undergoing a cyclic process, मतलब हमारे पास एक closed system है जिसमें क्या हो रहा है, कोई cyclic process occur हो रही है. Okay, so the cyclic integral of work, यानी कि जितना भी उस cycle में work होगा वो किसके proportional होगा? जितना भी उसके अंदर heat interaction होगा. So we can write the cyclic integral of heat is equal to cyclic integral of work. So this is the first law of thermodynamics for closed system when system is undergoing a cyclic process. So whenever a system is undergoing a cyclic process, this is the first law of thermodynamics. Okay, that is clear. Okay, now simplify this statement. इस सिस्टम इस सेम स्टेटमेंट को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं. फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस द एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन. तो यानी कि जितना भी उसके अंदर हीट इंटरेक्शन होगा उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे
और जितना भी वर्क इंटरेक्शन होगा उनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जितना भी एल्जेब्रिक सम हुआ किसका, हीट का, वो किसके बराबर है, वर्क के बराबर। तो यानी कि जितना नेट हीट ट्रांसफर होगा उतना ही कितना होगा, क्या होगा, डब्ल्यू नेट। तो यहां पर लिखने में गलती हो गई है, दिस इज डब्ल्यू नेट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस फर्दर, मोर सिंप्लीफाई दिस। सपोज वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम है which is undergoing a cyclic process, so this is a closed system and it is undergoing a cyclic process, and during the cycle there are different heat interaction and work interaction, like that. So when a system is undergoing a cyclic process, we have different heat interaction, like Q1 heat is coming to the system and W1 work is coming to the system. Q2 heat is supplied by the system, and similarly the W2 work is supplied by the system. Q3 heat is supplied to the system, Q4 heat supplied by the system, and Q3 work is supplied by the system. Now, according to the first law of thermodynamics, the algebraic sum of heat is equal to the algebraic sum of work. तो यानी कि हम किस किस का सम करेंगे, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 must be equal to W1 plus W2 plus W3. That is clear or not? ये क्लियर है? ओके यस सर। यस सर। सर एक बार सर इसे दोबारा रिपीट कर दो सर, एकदम कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी सर, सुनने में नहीं आया एकदम। ओके बेटा, आप माइक ऑफ कीजिए सर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। So we all know first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics also known as law of conservation of energy. Conservation means जो एनर्जी है वो कंजर्व प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी वैल्यू ना ही कम हो सकती है ना ही बढ़ सकती है यूनिवर्स के केस में, ठीक है, यानी कि वो कंजर्व प्रॉपर्टी है, वो कभी भी लॉस नहीं होगी। So the general statement of the first law of thermodynamics is that energy can neither be created nor be destroyed. तो ना ही एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक इन हीट इंजन, आप तो कह रहे हैं कि हमने एनर्जी सप्लाई करी इंजन को, बट आपने हीट प्रोड्यूस करी, काहे से करी, फ्यूल से सप्लाई करी। तो फ्यूल में कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी। Then you convert this chemical energy into the heat energy. So there is a conversion of energy. You cannot produce energy. Okay. So energy can only be transferred from one form to another form. Okay. And this law is known as universal law. Why universal law? क्योंकि इसको आप यूनिवर्स में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ हमेशा वैलिड रहेगा फॉर एंटायर यूनिवर्स। ओके, दैट इज व्हाई this law is known as universal law, which is conservation of energy. Okay, this is the general definition. अगर आप एग्जाम में इस डेफिनेशन को लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। You have to define first law of thermodynamics according to the thermodynamics, for the thermodynamics specifically, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया for different system, different process, इस तरीके से डिफाइन किया है। तो this is the general statement, that is also correct, but when examiner asks what is the first law of thermodynamics, you will define like that. Okay, so we can define the first law of thermodynamics for closed system, open system and isolated system. ठीक है, but in this lecture we are considering only closed system. Okay, so in this lecture we will talk about only closed system, the first law of thermodynamics for closed system. So we can define the first law of thermodynamics for cycle and process, but we are defining the first law of thermodynamics for cyclic process first. So we are going to define first law of thermodynamics for cycle. Okay, so what is the statement of first law of thermodynamics for cycle? When a closed system undergoing a cyclic process, the cyclic integral of work is proportional to the cyclic integral of heat. तो जब भी कोई सिस्टम, क्लोज सिस्टम, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जाता है तो उसमें जितना भी हीट का इंटरेक्शन होता है वो किसके बराबर होगा, जितना भी वर्क के इंटरेक्शन होगा उसके बराबर होगा। So we can write the cyclic integral of Q is equal to the cyclic integral of W. तो हीट, जितनी भी हीट का इंटरेक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए, वर्क के इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस द एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क इंटरेक्शन। तो जितना भी हीट का इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वर्क के बराबर होना चाहिए।
बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी हीट आ रही है सिस्टम के अंदर, और क्या अगर कोई वर्क बाहर जा रहा है तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द हीट एंड वर्क आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो व्हेनेवर सिस्टम इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। तो जितनी हीट आएगी उतना ही वर्क प्रोड्यूस होगा, या जितना वर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से उतनी ही हीट उस सिस्टम के अंदर एंटर हुई होगी। ओके, सो दैट मीन्स दिस टू मस्ट बी इक्वल। तो जितना भी हीट का इंटरेक्शन है वो किसके इंटरेक्शन के बराबर होना चाहिए, वर्क के बराबर। बट ये किसके लिए है, अगेन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो जब भी हम कभी साइकिल की बात करेंगे तभी हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे तो यहाँ पर ये साइक्लिक प्रोसेस आना जरूरी है, तभी ये जो डेफिनेशन दी है आपने फर्स्ट लॉ की वो करेक्ट होगी। ओके, सो वी कैन राइट द क्यू नेट इक्वल्स टू क्यू W net, or we can also write like that sigma q is equal to sigma W. It means the algebraic sum of heat must be equal to algebraic sum of work. Okay, now let's consider a system, let's consider a closed system which is undergoing a cyclic process. तो ये कोई सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, जो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम मस्ट पास थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। तो साइकिल है तो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होंगी, और उनमें डिफरेंट हीट इंटरेक्शन एंड वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो क्या क्या है, इस तरीके से Q1 हीट जा रही है, W1 हीट सप्लाई हो रहा है, Q1 हीट, Q2 हीट सिस्टम सप्लाई कर रहा है सराउंडिंग को, इसी तरह का वर्क सप्लाई कर रहा है W2, Q3 हीट सिस्टम को जा रही है, Q4 हीट सिस्टम से आ रही है, और Q3 वर्क सिस्टम से आ रहा है सराउंडिंग में। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, according to the first law of thermodynamics, when system undergoing a cyclic process, the net heat interaction must be equal to the net work interaction. तो कितना है हीट का इंटरेक्शन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और वर्क क्या है, W1 W2 W3। ओके, W1 W2 W3, क्लियर? नाउ बट we have to remember the concept that heat and work interaction only be defined, not only be defined by magnitude but also with sign. तो आपको उनका साइन भी याद रखना है। If heat is transferred to the system, the quantity must be positive or negative. If heat is transferred to the system, positive. पॉजिटिव, When work is transferred to the system, positive or negative? नेगेटिव, Positive. So negative. Negative. Okay, so this Q1 is positive, this Q2 is Negative. negative, this Q3, पॉजिटिव, this Q3 Q3 positive. पॉजिटिव, positive, Q4 Negative. negative. Okay, now W1 Sir, नेगेटिव, negative. Negative. negative, W2 Positive. Positive. W3 Positive. 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 So work done by the system is positive and work done on the system is negative. That's why this W1 is negative. Okay, now put the value. So we have put the value. So Q1 is positive, Q2 is negative, Q3 is positive, and Q4 is negative. Okay, and W1 is negative, and W2 and W3 are positive. Okay, so like that we can define the first law of thermodynamics for a closed system. Okay, when system is undergoing a cyclic process. That is clear? यहाँ तक क्लियर है Yes, बेटा sir. सबको? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Let's do a numerical. तो इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे, आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, आप एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे। इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर्स आर प्लस 14.7 किलो जूल, minus 25.2 kilojoule, minus 3.56 kilojoule, and plus 31.5 kilojoule. What is the net work for this cyclic process? तो यानी कि ये डिफरेंट इंटरेक्शन हो रहे हैं किसी साइकिल में, है ना, डिफरेंट हीट इंटरेक्शन हो रहे हैं, और आपको बताना है कि नेट जो वर्क ट्रांसफर होगा वो कितना होगा। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? So we know, according to the first law of thermodynamics, when a system undergoing a cyclic process, we can write Q net equals to
Q So 17.44. 44 kilojoule. 17.44 kilojoule. 2 point Kilojoule. Sir, 17.44 17.44 kilojoule. kilojoule. so let me do. So now put the value of, so this is positive, this is negative, this is again negative, and this is positive. So we can write the value of heat, and which must be equal to the net work interaction. So when we solve, we will find out the value 13.34 kilojoule. This is the net work interaction in the cycle. That is clear? सबका हो गया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. Okay. So now move to the next numerical. During one cycle, the working fluid in an engine engages in two work interaction. तो यानी कि कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रही है, ओके, साइकिल, उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है इंजन का, वो दो वर्क इंटरेक्शन ले रहा है. कौन कौन से? 15 किलोजूल टू द फ्लूइड, तो यानी कि 15 किलोजूल फ्लूइड को जा रहा है, एंड 44 किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड, तो यानी कि 44 फ्रॉम द फ्लूइड जा रहा है. तो इसमें हमारा सिस्टम क्या है? सिस्टम ये वर्किंग फ्लूइड है जो किसमें है? इंजन में. ओके, तो ये दो इंटरेक्शन ले रहा है. कौन कौन से? 15 किलोजूल का और 44 किलोजूल का. फर्स्ट वन टू द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड को जा रहा है, और सेकंड वन 44 किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड. सेकंड, द थर्ड 3 हीट इंटरेक्शन. तो दो तो वर्क इंटरेक्शन है और 3 क्या है? हीट इंटरेक्शन. ओके, सो 3 हीट इंटरेक्शन है. कौन कौन से? 2 ऑफ विच, 3 है टोटल, जिसमें से 2 ऑफ विच आर नोन 75 किलोजूल टू द फ्लूइड एंड 40 किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड. इवेल्युएट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ थर्ड हीट इंटरेक्शन. तो आपके पास टोटल 2 वर्क इंटरेक्शन थे जिनकी वैल्यू आपको गिवन है, और आपके पास टोटल 3 हीट इंटरेक्शन है जिनमें से सिर्फ आपको 2 की वैल्यू गिवन है, इसकी और इसकी. आपको थर्ड हीट इंटरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैलकुलेट कीजिए फटाफट. किसी को कोई डाउट? आंसर बताइए मुझे. Sir, 4 positive kilojoule. 4. ओके, किसने दिया आंसर? ये दीपक. ओके, चलिए देखते हैं कि गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट 2 इंटरेक्शन, वर्क के इंटरेक्शन दिए हैं, दैट इज 15 किलोजूल टू द फ्लूइड एंड 44 किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड. ओके, सबने कर लिया ना बेटा? आप यहां देखिए, छोड़ दीजिए जिसका जो हो रहा है. यहां देखिए, 15 kilojoule to the fluid and 44 kilojoule from the fluid. So what is our system? Fluid inside the engine. So this is the heat transfer to the system or from the system? 15 kilojoule. बताइए. But to the system. To the system. Positive or negative? Heat transfer to the system is positive or negative? Sir, positive. किसने बताया ये? सर ये तो वर्क है ना, मगर सर हीट. हाँ, ये वर्क की तो बता ये रहा तो हूं. वर्क है ना. तो सर, हाँ, तो वर्क ही तो बोल रहा हूँ. वर्क, सर नेगेटिव. वर्क ट्रांसफर टू द फ्लूइड, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव. नेगेटिव. Negative आएगा. किलोजूल फ्रॉम द फ्लूइड, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. So the work interaction W1 is minus 15 kilojoule and W2 is plus 44 kilojoule. That is clear? Okay. Now let's talk about the heat interaction. So we have the 3 heat interaction. First one is 75 kilojoule to the fluid, 40 kilojoule from the fluid, and third one we have to determine. Okay. So heat transfer to the fluid, positive or negative? Sir, positive. Positive. And heat transfer from the fluid? Negative. Negative. Okay, and this one we have to calculate. आप calculate कीजिए, determine कीजिए. We know according to the first law of thermodynamics, when a system is undergoing a cyclic process, the net heat interaction must be equal to the net work interaction. तो इन तीनों को प्लस करेंगे. Q1, Q2, Q3, W equals to W1 plus -6 आएगा. -6. Sorry sir. From minus there 6 you आ रहा can, है. so from there you can find out the value of Q3. -6. So Q3 is -6. So you can also write this answer like that. 6 kilojoule heat is supplied from the fluid. So this
6 किलोजूल हीट सप्लाई फ्रॉम द फ्लूइड, तो फ्लूइड ने हीट ट्रांसफर की है, दैट व्हाई इट्स अ माइनस साइन। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, किसी sir. को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Now, so we have defined the first law of thermodynamics for a cyclic process. Okay, so we have defined the first law of thermodynamics for a cycle. So now we are talking about process. So in this, from there we are defining the first law of thermodynamics for a process. So we understand for the cycle, now we are defining for a process. Okay, consider a thermodynamic cycle. So where is thermodynamic cycle? So process like that 1 to 2 and 2 to 1. तो 1 से 2 जा रही है सिस्टम पहले, और फिर 2 से 1 आ जा रहा है. बट जब when it is 1 to 2, it follow the path A, and when it is returned 2 to 1, it follows the path B. So we can write this cycle like that: 1 A 2 B 1. That is clear? So our cycle is 1 A 2 B 1. So we have start from 1, we follow the path A and then reach to a 2, then follow the path B and reach 1. So our cycle become 1 A 2 B 1. Any problem? That is clear? Yes, that is sir. clear? So Yes, it is sir. a cycle. It is a cyclic process. It is a cyclic process. Yes, sir. We can apply the first law of thermodynamics for this cycle. Okay, now apply the first law of thermodynamics for this cycle. Suppose the heat interaction in process 1 to 2, 1A2 is dq1A2. Okay, similarly the heat interaction in this process dq2B1, and work interaction in this process 1 dw1A2, and similarly in this process the work interaction is dw2B1. तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इस वाली प्रोसेस में कुछ हीट इंटरेक्शन हुआ होगा, सिमिलरली इसमें भी कुछ हीट इंटरेक्शन हुआ होगा, इसमें भी कुछ वर्क इंटरेक्शन हुआ होगा, इसमें भी वर्क इंटरेक्शन हुआ होगा कुछ. So we can write the first law of thermodynamics for the cycle. So apply the first law of thermodynamics for the cycle. We can write if the heat transfer in this process 1 to 2, जब 1 से 2 में जा रहा है, dq1A2. Okay, in this process 2B1 dq2B1. Similarly, if there is any work interaction, so dw1A2 plus dw2B1. This is our equation number 1. इसमें किसको डाउट है? किसी को डाउट इसमें बेटा? पूछिए, यहीं पर आगे एक और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है. कोई डाउट? सर एक बार सर एक बार यस, दोबारा बता दीजिए. okay. Suppose we have a process 1 to 2. हमारी कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें 1 से 2 पे जा रहा है सिस्टम, और फिर 2 से 1 पे आ रहा है, किस वाले पाथ से? बी वाले पाथ से. ओके, सो पहले इस वाले पाथ से गया, अब इस वाले पाथ से वापस आया. ओके, दैट इज क्लियर? ओके, नाउ सपोज हमको तो नहीं पता कि कितना हीट इंटरेक्शन हुआ या वर्क इंटरेक्शन हुआ. हमने मान लिया जनरल कि इसकी वैल्यू कितनी है. जो हीट इंटरेक्शन हुआ है जब प्रोसेस गई है 1 से 2, जब 1 से 2 जा रहा है सिस्टम, तो वर्क हुआ है dq, और हम उसको जनरलाइज वर्ड में लिख दे रहे हैं 1A2. यानी कि जब सिस्टम 1 से 2 पे गया वाया पाथ A, तो इतना हीट इंटरेक्शन हुआ होगा. इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट हमने ले लिया कि ये हो रही है. ओके, सिमिलरली जब वो सिस्टम यहां से यहां गया होगा, तब हमने माना कि कुछ कुछ हीट इंटरेक्शन हुआ होगा. हीट इंटरेक्शन कितना है? Q1 ना सॉरी 2B1. ये क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर हैं? यस सर. Okay. So similarly in this process, when system changing state from 1 to 2 via path A, the work interaction is this dw1A2. और जब सिस्टम ने वापस 2 से 1 पे आया होगा वाया B, तो जो वर्क इंटरेक्शन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? dw2B1. Okay, so from the first law of thermodynamics for a cyclic process, because this is a cyclic process, 1 से start हुआ था, 2 पे गया, 2 से दोबारा 1 पे आ गया, तो initial and final state are identical. So this is a cyclic process. So we can apply the first law of thermodynamics for a cyclic process.
So which is that the net interaction of heat must be equal to net interaction of work. Clear? So net heat का interaction कितना हुआ है? एक तो ये हुआ है और दूसरा ये हुआ है. So this is dq1a2 plus dq2b1. Similarly, net work का interaction कितना हुआ है? dw1a2 plus dw2b1. Okay, so this is from the first law of thermodynamics for a cyclic process. किसकी समझ में नहीं आया अभी? डाउट है कोई बेटा? नो सर. क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर? यस सर. ओके. यस क्लियर है. Okay. Now, so we have write the first law of thermodynamics for this cycle. Okay. Now, let's take a process from 2 to 1. अभी तो हमारी प्रोसेस क्या थी? हम इस वाले पाथ से आ रहे थे. अब हम एक दूसरा पाथ ले रहे हैं 2C1. हमने एक दूसरा पाथ ले लिया. ठीक है. तो हमारी साइकिल जो अब हमने एज्यूम कर रहे हैं वो क्या एज्यूम कर रहे हैं? पहले सिस्टम 1 से 2 पे जाएगा वाया ए और वापस जब आएगा तो वो बी से ना आके सी से आए 2C1. सो आवर साइकिल बिकम 1A2 2C1 1A2 C1. यहां तक कोई डाउट किसी को? मैंने दूसरी साइकिल ले ली है. पहली साइकिल क्या थी हमारी? 1A2B1 और अब मैंने साइकिल क्या ले ली है? 1A2C1. तो अब ये वाली साइकिल हो गई है हमारी, ये वाली. इस वाली प्रोसेस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया. क्लियर? ये भी साइकिल है क्योंकि सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था? 1 से स्टार्ट हुआ था, वो 2 पे गया और फिर दोबारा से 1 पे आ गया. बट इस बार उसने दूसरा पाथ लिया है वापस आने के लिए. तो ये हमारी डिफरेंट साइकिल हो गई. दैट इज 1A2C1. यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर. क्लियर? समझ में आ रहा है ना? दोबारा से बताऊं? दोबारा से बताऊं? आ रहा है. आ रहा है. ओके. So now we have considered the different cycle, okay, which is 1A2C1. Can you write the first law of thermodynamics for this cycle? आप इस साइकिल के लिए लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ, जैसे हमने पहले वाली साइकिल के लिए लिखा था, इस वाली साइकिल के लिए 1A2P1 के लिए. इसी तरह इसके लिए भी लिख के बताइए मुझे, फटाफट बताइए क्या आएगा. बताइए. dq1a2 plus Yes. dq2c1 dq equal to dq2c1 dq1a2 plus plus dq1 equals to 1A2 w1a2 plus C1. w dw 2c1. यही आ रहा है हाँ जी. Yes, सबका, यही आ रहा है. ओके, कोई डाउट नहीं. ओके, so this is the first law of thermodynamics for this cycle. Okay, so we have considered two cycles. First one, this one, and second is 1A2C1. And we have write the first law of thermodynamics for the both cycles. So in the previous slide we have equation 1, and in this slide we have equation 2. Okay, now subtract equation 1 and 2. तो 1 और 2 को माइनस कर देंगे. Okay, so equation 1 and equation 2. तो equation 1 क्या थी हमारी? dq1a2 plus dq1b1. ठीक है. बट यहाँ पर हमने क्या है, इस वाले पाथ से वापस नहीं आए, हम सी वाले पाथ से वापस आए. तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे क्या है? 2c1. और सिमिलरली यहाँ पर जो वर्क का इंटरेक्शन है वो भी 2b1 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? 2c1. सो दिस इज अवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2. बेटा करते रहिए साथ में कॉपी पेन के साथ अपने, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा. देख के ये सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? अब इसको माइनस करना है, इन दोनों को आपस में माइनस करना है. माइनस कर दीजिए. कैसे होगा माइनस? माइनस करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव था इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा. करिए माइनस क्या होगा बताइए? कुछ कैंसिल होगा? dq2b1 minus dq2c1 is equals to dw2b1 minus dw2c1. So this term and this term is same in this equation. Okay, similarly this term and this term is same in the equation.
So these two terms and these two terms will be cancelled out. Okay. Then you will get dq2b1 minus dq2c1 माइनस साइन आएगा, यहां पे क्या आएगा dw2b1 माइनस dw2c1. सबका आया यही? Yes, sir. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. Okay. So we will get this equation. Okay. Clear? Now, what is this dw2b1? इसका मीनिंग क्या है? dw2b1 का मीनिंग क्या है? Sir, work done by path. Work done when system go from state 2 to 1 via path B. Okay. B. And what is the meaning of this W2C1? When system change states from 2 to 1 via path C. And what is the value of work interaction? Area under the curve when projected on the volume axis. तो इन दोनों में से वर्क किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में से वर्क कौन सा ज्यादा होगा? 2B1 ज्यादा होगा कि 2C1 ज्यादा होगा? 2C1. 2C1. Because the 2C1. area under the curve on 2C1 is greater, then this work is more. So we know because the work is a path function. Because work is the path function, it means जो ये वर्क होगा इस वाली प्रोसेस में 2B1 is not equal to is and the 2C1 are not equal. It means जब दोनों माइनस होंगे तो जीरो तो आएगा नहीं कभी. अगर ये दोनों बराबर होते तो इनको जब हम माइनस करते तो ये जीरो होता, बट ये दोनों बराबर नहीं है. इट मींस इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. इसमें वर्क कितना है 2B1 में? एरिया अंडर दिस कर्व. इस वाली प्रोसेस की बात करेंगे तो एरिया कितना होगा? इस ये वाले एरिया जितना इस कर्व के अंडर में एरिया है, और अगर इस वाली प्रोसेस की बात करेंगे तो ये वाला वर्क भी ऐड हो जाएगा साथ में. ओके. सो दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो दिस मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. क्लियर? ये चीज क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके. अगर ये Yes, दोनों sir. जीरो के इक्वल, अगर ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या इसको हम जीरो के इक्वल कह सकते हैं? ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा. अगर ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा. Yes, sir. क्लियर? क्लियर? कैन यू टेल मी, आपको क्या समझ में आया इससे? तो ना ही वर्क जीरो के इक्वल होंगे ना ही वर्क जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है. ठीक है, वर्क बराबर नहीं है आपस में. वर्क मींस क्या है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो बराबर नहीं हो सकता. देखो, वी आर गोइंग टू चेंज अवर स्टेट फ्रॉम 2 to 1. तो हमारी स्टेट क्या थी? 2, और वहां से हम गए 1. तो पहले हमने पाथ फॉलो किया B वाला और दूसरी बार पाथ फॉलो किया हमने C वाला. तो व्हेन वी आर चेंजिंग अवर स्टेट from one equilibrium state to another via two different paths, the value of work interaction is different. We know that. जब हम किसी दो फिक्स स्टेट तो फिक्स है अपनी जगह पर, जो 2 है वो भी फिक्स है, जो 1 है वो भी फिक्स है. जब ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है बाय डिफरेंट पाथ, तो ये इनकी वैल्यू, जो वर्क इंटरेक्शन की वैल्यूज हैं वो अलग अलग आ रही हैं. इट मींस वर्क इज अ पाथ फंक्शन. ओके. क्लियर? ये तो पता है आपको. That is clear or not? यस सर. Yes, sir. Okay. So when in a process when the states are fixed, जब 2 और 1 फिक्स है और हीट इंटरेक्शन हो रहा है Q2B1 एंड Q2C1, तो 2 डिफरेंट पाथ से जब हीट इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि वो भी जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि उन दोनों की वैल्यू भी क्या है? अलग अलग है. यानी कि जो ये आपका हीट इंटरेक्शन है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे? सर पाथ पे. पाथ पे डिपेंड कर रहा है. इट मींस द हीट ट्रांसफर इज आल्सो अ पाथ फंक्शन. नहीं आया समझ में?
फिर से बताऊं, एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, इक्वेशन 1 ली थी, इक्वेशन 2 ली थी, देन वी सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके, एंड आफ्टर द subtraction we will get this equation, okay. So these two quantity are not equal, we know that. So these two quantities are not equal because the work interaction is a path function and it depend upon the path followed by the system. जो भी path follow कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो it must be not equal to 0. तो ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे. If the system follows through different path, then work interaction कैन नॉट बी इक्वल. तो वर्क इंटरेक्शन कभी भी इक्वल नहीं होता, यानी ये कभी जीरो नहीं होगा. अगर ये कभी जीरो नहीं होगा तो वी कैन से ये जो इन दोनों का जो माइनस हो रहा है ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता. इट मींस ये जो दोनों वैल्यू हैं ये आपस में बराबर नहीं है. इट मींस जब सिस्टम ने अपना स्टेट चेंज करी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और 2 डिफरेंट पाथ लिए, तो दोनों में हीट इंटरेक्शन की वैल्यू अलग अलग आई. इट मींस heat is also a path function which depend upon the path followed by the system. That is clear? Clear है बेटा? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. आगे बढ़ूं? Okay. Yes So, sir. Similar to the work, heat is also a path function, and heat is not the property of the system. Like work is also not a property of a system because we cannot define the value of heat or work at a point. किसी पॉइंट पे हम नहीं बता सकते कि कितनी है, क्योंकि उसके लिए पूरा पाथ पता होना चाहिए कि किस पाथ से फॉलो हो रहा है. ओके, एंड हीट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एट अ बाउंड्री लाइक वर्क. जैसे वर्क को हमने कहा था कि ये सिर्फ बाउंड्री पे अपेयर होता है, इसी तरीके से जो हीट होती है ये भी सिर्फ बाउंड्री पे अपेयर होती है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल लाइक वर्क. तो जैसे हमने कहा था कि जो वर्क इंटरेक्शन है वो भी क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसी तरीके से जो हीट है वो भी क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है. याद रहेगा, हीट और वर्क क्या है, पॉइंट फंक्शन है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है. ओके, क्लियर सर? इनएग्जैक्ट का मतलब क्या है सर यहाँ पे? बेटा लास्ट लेक्चर में नहीं थे आप? हाँ, किसने पूछा? हाँ, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, सर ध्यान नहीं आ रहा. देखिए, जब कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी क्यू. बट अभी क्योंकि कंप्यूटर में लिखने में दिक्कत हो रही है, अदरवाइज हम हमेशा उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, डी क्यू. ओके, अगर जो भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा या फिर इस फॉर्म में डी क्यू. ओके, क्योंकि जब भी हम उसमें बात करेंगे उसमें हमेशा क्या करेंगे, चेंज की बात करेंगे. आप कभी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी पॉइंट पे दिखाई नहीं सकते. आपने जब मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ी होगी उसमें, है ना, तो उसमें एक आपने न्यूमेरिकल जब इंटीग्रेशन नहीं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको अच्छा सर, पार्शियल डेरिवेटिव, समझ गया. तो आपने इसको इस तरीके से डिफाइन किया होगा, एम डी एक्स इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, इस तरीके से डिफाइन किया कोई फंक्शन, है ना. तो वहां पर आपने पढ़ा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है. ओके, तो जो आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, और जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है. ओके, क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर. नाउ कंसीडर द इक्वेशन 3 अगेन. तो आपने बताइए इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, बताइए. आप लोग लिख रहे हैं, कोई पेपर पे लिख रहा है जो, बताइए. dq2b1 minus dq2c1 is equals to dw2b1 minus dw2c1. Okay, so this is our equation number 3. This is our equation number 3. Okay, so इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें कैसे, दिस प्रोसेस इज 2b1 एंड दिस वर्क इज 2b1. दिस हीट इंटरेक्शन इज 2c1 एंड दिस वर्क इंटरेक्शन इज 2c1. तो हम इन टर्म को ऐसे अरेंज करें कि एक प्रोसेस के टर्म एक ही उसमें आ जाए, जैसे इस तरीके से. तो मैंने क्या करा, 2qb1 ये तो यहीं पे रहा, और ये वाली प्रोसेस इस वाले को वर्क को इस तरफ ले आया. तो जब इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, dw2b1. तो ये भी 2b1 था, ये भी 2b1 है. सिमिलरली इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव था, यहां जाके पॉजिटिव हो गया, dq2c1 माइनस dw2c1 हो जाएगा ऐसा.
समझ में आया ये? यस सर। ओके, नाउ अब इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, ये भी 2b1 है, ये भी 2b1 है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। और ये क्या था 2c1, ये भी 2c1, तो मैंने बाहर से लिख लिया। इट मींस फॉर अ प्रोसेस 2b1 व्हेन सिस्टम चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 पे जा रहा है वाया पाथ 1, तो वैल्यू ऑफ dq माइनस dw इक्वल्स टू dq माइनस dw व्हेन वी फॉलो पाथ 2c1। कॉम्प्लिकेटेड हो गया? हाँ सर। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ऐसा तो यानी कि ये लास्ट जो, लाइन एक बार और बता दो। ओके बता रहा हूं एक बार। ओके, हमने क्या किया था, हम एक बार अपने, हमारी स्टेट क्या है वो तो फिक्स है 2 से 1, एक बार हमने v पाथ फॉलो किया है 1 पे जाने के लिए, एक बार हमने c पाथ फॉलो किया। ओके, तो इसमें भी कुछ हीट इंटरेक्शन हो रहा था, इसमें भी कुछ वर्क इंटरेक्शन हो रहा था, इसी तरीके से इसमें भी हीट इंटरेक्शन हो रहा था, वर्क इंटरेक्शन हो रहा था। बट अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हीट को एक तरफ लिख रहे थे, वर्क को एक तरफ लिख रहे थे, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं था, है ना, प्रोसेस का नाम नीचे लिख दे रहे थे। बट अब हमने क्या कर दिया, जो इस प्रोसेस में हीट हो रही है और जो इस प्रोसेस में वर्क हो रहा है उनको एक ही तरफ लिख रहे हैं। जैसे इसमें हमने अगर दोबारा से रीअरेंज करा जब इसको, तो जो एक प्रोसेस में जो हीट इंटरेक्शन था और जो एक प्रोसेस में वर्क इंटरेक्शन था उनको साथ में लिख दिया। तो यानी कि ये किस तरीके से आ गया इस इक्वेशन को, इसको इधर करेंगे तो ये क्या था, हीट इंटरेक्शन था 2b1 में जब हमने b वाला पाथ फॉलो किया था, और उसी प्रोसेस में वर्क इंटरेक्शन कितना था 2b1। ओके, तो ये वाला वर्क इंटरेक्शन था। और जब हम प्रोसेस ले रहे हैं दूसरी वाली, जब हम पाथ ले रहे हैं c वाला, तो उसमें हीट इंटरेक्शन कितना था, इतना, और वर्क इंटरेक्शन कितना था, इतना। ये कहां से आया है, इक्वेशन 3 से। जब हमने इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई किया तो हमको ये इक्वेशन मिली। यहां तक क्लियर? क्लियर है बेटा? इसको मैं आगे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये भी 2b1 में, ये भी 2b1 में, ये भी 2c1 में, ये भी 2c1 में, तो इन दोनों को, इस प्रोसेस को और इसके लिए प्रोसेस को बाहर से ब्रैकेट में लिख दिया। और ये वाला भी 2c1 में और था, ये भी 2c1 में और था, तो इनके लिए ब्रैकेट में बाहर से लिख दिया 2c1। क्लियर? आकाश क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। So the value of dq minus dw, the value of dq minus dw for path 2b1 and the value of dq minus dw for path 2c1। तो जब हमने एक बार पाथ b वाला पाथ फॉलो किया और एक बार हमने c वाला पाथ फॉलो किया, तो वैल्यू जो dq माइनस dw की वैल्यू थी वो दोनों के लिए पाथ के लिए सेम आ रही है। इससे क्या पता चलता है, जो ये dq माइनस dw टर्म है ये क्या है सर? एनर्जी। एनर्जी है। और इससे पहले एनर्जी से पहले कुछ पता चला कांस्टेंट हो गया है, दोनों कांस्टेंट है। इट मींस इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही थी, है ना। तो जो इनकी वैल्यू है ये किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डज Path नॉट पे। डिपेंड अपॉन द पाथ। Path। तो dq माइनस, जब हमने दो फिक्स स्टेट के बीच में, डिफरेंट पाथ के बीच में हमने dq माइनस dw की वैल्यू निकाली, तो वो उनके जो पाथ फॉलो हुआ है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। वो उसके लिए जब b वाला पाथ फॉलो किया तब भी सेम आ रही है, जब c वाला पाथ फॉलो किया है तब भी सेम आ रही है। इट मींस दिस टर्म dq माइनस dw मस्ट बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है? It Sir, does point not depend upon the path. It means it's a point function. Point It means it is a property of the system. It means ये क्या, जो टर्म आई है dq माइनस dw, ये क्या है, प्रॉपर्टी है सिस्टम की। क्लियर? ये क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी। सर ये पाथ पे कैसे डिपेंड नहीं कर रही सर? देखो बेटा, हमने कोई प्रोसेस करी थी, ठीक है, हमारी स्टेट क्या थी 2 और ये क्या थी 1। तो फर्स्ट वी फॉलो दिस पाथ एंड देन वी फॉलो दिस पाथ। तो हमारा एक टाइम पे पाथ क्या था b और दूसरे टाइम पे पाथ क्या था c। तो जो वैल्यू है dq माइनस dw, जो वैल्यू है dq माइनस dw, ये आपस में बराबर आ रही नहीं आ रही है? तो जब ये एक बार b वाले पाथ को फॉलो करके हमने dq माइनस dw निकाला और एक बार हमने c वाले पाथ को फॉलो करते हुए dq माइनस dw निकाला, तो ये दोनों पाथ पे डिपेंड कर रही है क्या आपस में, दोनों बराबर आ गई। इट मींस जो dq माइनस dw की वैल्यू आ रही थी इस पाथ के लिए, वही इस वाले पाथ के लिए भी आ रही है, c वाले पाथ के लिए। यानी कि इन दोनों की वैल्यू दोनों आपस में बराबर आ रही है, जबकि दोनों डिफरेंट पाथ में जा रहे हैं।
तो यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये दोनों पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। किसने पूछा था बेटा ये? अच्छा सर, मैंने सर, हाँ सही समझ गया सर। क्लियर, दैट इज क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। ओके, सो इट मींस इट मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो ये दोनों बराबर थे, तो हमने यानी कि इट मींस क्या हो रहा है, इट मींस बिटवीन टू फिक्स स्टेट। तो हमारी दो स्टेट फिक्स थी, द वैल्यू ऑफ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू रिमेन फिक्स। तो हमारी जो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू थी वो फिक्स रही। इट मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम एंड इट मींस इट मस्ट बी अ प्रॉपर्टी। ओके, तो इसका मतलब जो ये डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, और जिसको हम इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ओके, सो द हीट इंटरेक्शन माइनस वर्क इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और आपको तो पहले से ही पता है ना कि जो हीट होती है और जो वर्क होता है वो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब भी कोई सिस्टम एनर्जी का इंटरेक्शन करेगा तो हीट की फॉर्म में करेगा, तो वर्क की फॉर्म में करेगा। तो जितनी हीट आएगी माइनस जितना वर्क आया, और जो जितना जितना जो भी बचेगा उनका टोटल वो किसके बराबर होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी के बराबर। ओके, क्लियर? यस सर। Okay. So the zeroth law of thermodynamics give you a property which is temperature. Okay. तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक आपको प्रॉपर्टी देने वाला है अभी, ठीक है, उसको देखते हैं वो क्या है। So this is the property energy. So we get this value dq minus dw is equal to d, and this is the property of the system, and this is the energy. और इसको क्या बोल रहे हैं हम, एनर्जी। ओके, सो जब मैं आपको एनर्जी इंटरेक्शन पढ़ा रहा था, है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। ओके, कुछ एनर्जी तो मान लीजिए सिस्टम आपका उसको कुछ हाइट पे ले जाओ आप, मान लीजिए सपोज आपका ये रेफरेंस फ्रेम है ना, अगर आपका सिस्टम यहां पर है तो ये क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर इफ एनी फ्लूइड इज एंटर इनटू द सिस्टम, अगर ओपन सिस्टम है, अभी हम सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर ओपन सिस्टम है और कुछ फ्लूइड एंटर कर रहा है v की स्पीड से, v1 की स्पीड से, और आउट कर रहा है v2 की स्पीड से, तो देन वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए जैसे हमारी नोजल थी, तो फ्लूइड इज एंटर एट अ लो वेलोसिटी एंड एग्जिट विद अ हाई वेलोसिटी, सो देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है इस तरीके से, जैसे, और टैंक है कोई जिसमें वाटर यहां से इन कर रहा है और आउट यहां से कर रहा है, तो जब एंटर कर रहा है तब तो उसकी हाइट 0 है, बट जब आउट कर रहा है तब उसमें साथ में क्या हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है आप लोगों के? आ रही है सर। ओके, सो एनर्जी दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या है, जो हम फील कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि जो फ्लूइड एंटर कर रहा था सिस्टम के अंदर और जो एग्जिट कर रहा है उन दोनों में वेलोसिटी चेंज है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली if fluid is entering with some potential energy and leaving with some different potential energy, then you can also say that there is a change in potential energy. But in closed system there is no interaction of mass. तो जब मास एंटर ही नहीं कर रहा है और लीव ही नहीं कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताइए? जीरो। सर 0। और जब मान लीजिए जैसे यहाँ पर फ्लूइड एंटर कर रहा था किसी हाइट से, ये डेटम लाइन है हमारी, तो यहाँ पर हाइट थी z1, है ना, और यहाँ पर हाइट होगी z2, तो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट व्हेन द सिस्टम इज क्लोज देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो 0. So for a closed system the change in potential energy and kinetic energy and potential energy are 0, and we can write the first law of thermodynamics for a process like dq minus dw equals to du। तो चेंज इन जो काइनेटिक, जो हीट इंटरेक्शन माइनस वर्क इंटरेक्शन इक्वल्स टू du।
एंड दिस du इज इंटरनल एनर्जी। तो जितना भी हीट का इंटरेक्शन है माइनस वर्क का इंटरेक्शन है इन अ प्रोसेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन द internal energy, and this internal energy is a microscopic energy which is associated with the molecule। ठीक है, एक मिनट फिर से, अभी जब मैं एक बार इंटरनल एनर्जी बताऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। तो व्हेन वी नो दैट any matter is made with a molecule and molecules is doing a random motion in the matter। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई गैस ले रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं यानी कि उनमें क्या है, कोई काइनेटिक, उनमें कोई वेलोसिटी है, तो उसके उस मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है तो उसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रोटरी मोशन कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरीके से वहां पर कोई प्लस चार्ज होगा, कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उनके बीच में कोई एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन कर रहे होंगे तो वहां पर कोई एनर्जी होगी जो होगी एसोसिएटेड। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसकी वजह से कुछ होगी, न्यूक्लियर स्पिन की वजह से एनर्जी होगी। तो जितनी भी एनर्जीज हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एसोसिएटेड हैं, जिनको हम फील नहीं कर सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो सारी की सारी एनर्जी का जो सम है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरनल एनर्जी। ओके, सो इट इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड द डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए हम हीट ट्रांसफर करेंगे अगर किसी गैस को, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा तेजी से रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे, और जब ज्यादा तेजी से रैंडम मोशन करना शुरू करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ओके, बट वी कैन नॉट मेजर दिस, हम उसकी मॉलिक्यूल की स्पीड तो नहीं नाप सकते, तो उस इन सारी एनर्जीज को, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो इन सारी एनर्जी को एक साथ एसोसिएटेड कर दिया और उनको नाम दिया इंटरनल एनर्जी। ओके, क्लियर? क्लियर बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। Okay. So for the closed system, for a closed system which is undergoing a process, the first law of thermodynamics is dq minus dw equals to d। किसके लिए बोला मैंने? क्लोज सिस्टम। फॉर क्लोज सिस्टम। ये किसके लिए फर्स्ट लॉ है? क्लोज सिस्टम के लिए। ओके, एंड फॉर किसके लिए, और साथ में किसके लिए? प्रोसेस के लिए। साइक्लिक। अरे साइक्लिक कहां से बेटा? साइकिल किसने बोला? साइकिल करण आपने बोला बेटा? करण? नो सर, साइकिल मैंने नहीं बोला सर, मैंने नहीं बोला। साइकिल कैसे है? किसने बोला साइकिल? साइकिल के लिए तो हमने पहले डिफाइन किया था ना, साइकिल के लिए तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था, ये साइकिल के लिए था, ये था साइक्लिक प्रोसेस के लिए। बट आफ्टर दैट वी डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस। तो हमने किसके लिए डिफाइन कर रहे थे? प्रोसेस के लिए। तो ये वाला पार्ट पूरा प्रोसेस, यहां तक जितना डेरिवेशन किया है हमने, ये सब इसने क्या दिया हमको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए क्या निकल के आया है? व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम, देन वी कैन राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल टू dq minus dw equals to de। और when it is a closed system, so change in kinetic and potential energy is zero, then we can write dq minus dw is equal to du। clear? यस सर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मेरे लिए कीजिए जरा, एक फटाफट देखें जरा आपको कितना समझ में आया है। A domestic refrigerator is loaded with food and the door is closed। ठीक है, एक कोई फ्रिज है, उसके अंदर कोई खाना आना रखा है, दरवाजा बंद है। ओके, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द मशीन कंज्यूम 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसने टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी? 1 किलोवाट आवर। ओके, एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्रॉप बाय 5000 किलो जूल। तो इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज करी है कितनी? 5000 किलो जूल।
फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर फॉर द सिस्टम। तो पहले ये बताइए साइक्लिक प्रोसेस है कि खाली सिर्फ एक प्रोसेस है? ये साइक्लिक प्रोसेस है या सिंपल प्रोसेस है? सब प्रोसेस प्रोसेस है। ओके, मतलब एक हमने किसी पीरियड के लिए हमने वर्क ट्रांसफर निकाल लिया और हमको इतना पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी कितनी ड्रॉप हुई है। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास वर्क इंटरेक्शन है, कितना है वर्क इंटरेक्शन जो हमने क्या किया है ड्यूरिंग अ पीरियड मशीन कंज्यूम। तो ये हीट जो वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम है कि टू द सिस्टम है? ये वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम है टू द सिस्टम है? सर टू द सिस्टम। सिस्टम To the क्योंकि कंज्यूम कर रहा है सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को। कितनी? 1 किलोवाट आवर। ओके, सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? किलोवाट आवर लिखा हुआ है, सॉरी यहां पर आवर लिखा रह गया, इसको आवर को हटा देंगे क्योंकि हमने पहले ही इसको कन्वर्ट कर लिया है किसमें? हमने कन्वर्ट कर लिया है इसको आवर को। आवर एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में कितने? 60 सेकंड। सो वी कैन राइट 3600 किलोवाट। ओके, नाउ वी हैव another information, internal energy of a system drop by 5000 kilojoule। सपोज प्रोसेस क्या हुई है 1 से 2, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो कितनी ड्रॉप हुई है? देखिए एनर्जी क्या हुई है? ड्रॉप हुई है। इट मींस द वैल्यू ऑफ U2 इज लेस देन द U1। U1 की ज्यादा रही होगी, U2 की कम रही होगी, तभी तो ड्रॉप हुई है। अगर U1 की कुछ एनर्जी है उससे ड्रॉप हुई है, कितनी ड्रॉप हुई है? 5000। तो यानी कि U2 माइनस U1 कितना आना चाहिए? माइनस 5000 किलोजूल। ये किसकी समझ में नहीं आया माइनस क्यों आया करके? ये किसकी समझ में नहीं आया बताएंगे? हाँ सर दोबारा समझा दो इसको सर। देखो बेटा, कुछ इंटरनल एनर्जी थी U1, ठीक है, फिर हो गई U2, क्योंकि प्रोसेस एक प्रोसेस हुई है तो 1 से 2 हुई होगी प्रोसेस। तो डेल्टा U कितना होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? U2 माइनस U1, यही हुआ होगा। अब क्या हुआ है देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्रॉप मतलब गिरी है। तो यानी कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी? U2 की बड़ी होगी कि U1 की बड़ी होगी? कौन बड़ा होगा इनमें से? सर U1। U1 बड़ा होगा ना। U1 बड़ा होगा, फिर इससे 5000 कम हो गई। तो यानी कि जो ये यहां पर चेंज आएगा वो क्या आएगा? माइनस आएगा कि प्लस आएगा? जब U2 छोटा है U1 से, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो ये साइन आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा? minus. माइनस। सही लिखा है मैंने? यस सर। Yes, sir. अब आपको क्या करना है? आपको क्या निकालना है? नेट हीट ट्रांसफर। तो आपको हीट ट्रांसफर निकालना है। तो हीट ट्रांसफर आप कैसे निकालें? आप Minus 1400. आप क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस अप्लाई करेंगे और वहां से आप क्या निकालेंगे? वर्क ट्रांसफर। करिए फटाफट बताइए, आंसर बताइए। किसने बताया? 1400 माइनस 14 Minus 1400 सर मैंने होता है। ओके, कीजिए कीजिए, सब लोग बताइए आंसर फटाफट। एक क्विज भी आया होगा आपकी क्लास में, ठीक है, उस क्विज को भी अटेंड करना है आपने भी। आंसर गलत आ रहा बेटा आपका, चेक कीजिए दोबारा से। ये कितना है? ये तो निकालना है DQ माइनस वर्क क्या है? वर्क कितना है बताएंगे? वर्क कितना है? DW कितना है बेटा? 600 है। 600 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस में आएगा 1400। प्लस क्यों बेटा? माइनस में आएगा। प्लस की माइनस में माइनस में आएगा। आएगा सर। माइनस। बेटा गलती नहीं करो, मैंने पहले बोला था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू माइनस। अब बताइए कितना आ रहा है DQ? कीजिए कीजिए फटाफट, ये तो हाथ से हो जा रही कैलकुलेशन। माइनस 8600। माइनस 8600 8600 8600 8600। क्या
किलो जूल। किलो जूल। क्लियर? नहीं आया समझ में? बेटा 1400 जिसने लिया था उसने क्या किया था, पॉजिटिव ले लिया था इसको, जबकि क्या हो रहा है, ये कंज्यूम है। जब कंज्यूम है यानी कि सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है ना, आपने सप्लाई किया है, सप्लाई वर्क सप्लाई टू द सिस्टम है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या फिर से नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर सबका हो गया है? किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? क्लास एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. Okay. So hope you understand the first law of thermodynamics. Okay. So in the next class we will do some numerical on the first law of thermodynamics for a process. Then we will start the first law of thermodynamics for a open system. Okay. So we have explained the first law of thermodynamics for the for the closed system. Now in the next lecture we will start the first law of thermodynamics for open system. Okay. Most of the engineering devices are open system. ठीक है, तो that is very important. The first law of thermodynamics for open system. तो कल का लेक्चर बेटा मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, सो थैंक यू क्लास। आपके पास एक एक ट्यूटोरियल, एक क्विज आया होगा, क्विक क्विज असाइनमेंट, आप उसको कीजिए। ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।